Assalamu alaikum students, how are you all? Welcome back in the class of physics. Today we are starting the chapter number 16 of your book Electricity. Okay, so first let's study what is electricity. It is that domain of physics which focuses on effects of electric charges, or in simple words फ्लो ऑफ करंट का जो इफ़ेक्ट होता है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. Conductors and insulators. Conductors are those materials which can pass the electric current. The reason why they conduct electric current because of the presence of free electrons in that elements. कुछ elements हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें free electrons होते हैं, normally metals. उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कैपेबिलिटी की वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकते हैं. दे आर नोन एज कंडक्टर्स. इंसुलेटर्स आर दोज विच कैन नॉट पास इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. राइट, हेयर वी हैव कॉपर and you can see that when we connect the wires with the copper, the bulb glows. Copper is a conductor. Here is a wood, and when we connect our wires with the wood, the bulb didn't glow. Why? Because wood cannot pass electric current because it is the insulator. Right? Here is your question number 1. Now, what is electric charge, electric field and Coulomb? Electric charge, it is a property of matter that causes an attractive or repulsive force interaction with other electrically charged matter. Electric charges basically carrier particles होते हैं, like electrons and protons. Electron is negatively charged. ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है. इसी तरह से अगर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और जो सेम चार्जेस होते हैं, सेम पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो रिपल्जन शो करते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं. ये आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की कॉम्बिनेशन कैसी है. ये सेम वो हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनमें रिपल्जन है, अट्रैक्शन नहीं हो रही. इसी तरह से दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, तो यहाँ भी रिपल्जन होगी. न्यूट्रॉन्स हैं तो उसमें एक न्यूट्रल कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, ना उसमें अट्रैक्शन है ना उसमें रिपल्जन है. तो ये देखिए यहाँ पे बेसिकली कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा. ओके, व्हेन वी हैव अपोजिट साइंस, अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स, देयर इज एन अट्रैक्शन. सो दीज आर द इलेक्ट्रिक चार्जेस. ओके, नाउ here we have the individual effects of these charges. This is the positively charged particle and this is the negative charged particle, and when these two combine together they create a particular region, and that particular region is known as electric field. Electric field वो होती है, वो उस एरिया को कहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जर्व हो सके. Okay, so this region is known as electric field, which is combined effect of the positive and negatively charged particles. Here you have to note down this definition and as well as this picture, right? And this figure you have to make in the electric charge definition, right? You have to show the repulsion and attraction process. ओके, नाउ व्हाट इज़ कूलम? इलेक्ट्रिक चार्ज की जो मेजरमेंट है उसको हम कूलम कहते हैं. इट इज़ द एसआई यूनिट फॉर द इलेक्ट्रिक चार्ज. क्या, और ये डिपेंड करता है कि जो चार्जेस प्रेजेंट हैं उनमें कितनी रिपल्जन अकर हो रही है या कितनी जो है वो अट्रैक्शन अकर हो रही है, उस फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है. दिस इज़ कूलम. And now we have Coulomb's law. What is Coulomb's law? Derive the expression for it. The force of attraction or repulsion between the two charged particles
is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges. ये जिस तरह से अभी हमने जब इलेक्ट्रिक चार्जेस अभी देखे तो उसमें हमने यही नोट किया कि जो सेम चार्जेस थे उनमें रिपल्जन अकर हो रही थी और जो अपोजिट चार्जेस थे उनमें अट्रैक्शन अकर हो रही थी। तो रिपल्जन के मीनिंग्स क्या हैं कि उनकी दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसी है, लेस होती चली जाएगी कि जिस तरह से उसमें दो चार्जेस के दरमियान रिपल्जन होती चली जाएगी। जैसे ये देखिए, ये अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट तो नहीं होंगे रिपल्सिव कंडीशन में, जिसकी वजह से इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती चली जाएगी। सेम इन द केस ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज, हेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो डिक्रीजेज, बट व्हेन वी हैव अपोजिट चार्जेस देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से होगा क्या कि इनके दरमियान का डिस्टेंस कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो यही वाली बात यहाँ पे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के, उनके चार्जेस का जो भी कॉम्बिनेशन है उसके, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जो उनके दरमियान का डिस्टेंस है। जिस तरह से फोर्स इंक्रीज होती जाएगी डिस्टेंस कम होता चला जाएगा। सो हियर वी आर ऑब्जर्विंग inverse relation as well. You have to draw this figure along with the law, right? Okay, here we have expression for the Coulomb's law. Two charges Q1 and Q2 are placed at a distance r. According to the Coulomb's law, the force of attraction or repulsion is directly proportional to the product. ये देखिए, ये फर्स्ट कंडीशन लिखी, जो फोर्स है वो चार्ज 1 और चार्ज 2 पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। ठीक है, जबकि डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस को यहाँ पे रेडियस से प्रेजेंट किया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसका। एंड अच्छा, अब क्या है कि दोनों तरफ फोर्सेस हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो बेसिकली वी कैन कंबाइन और यू कैन से हम कंपेयर करवा सकते हैं। ठीक है, बाय द कंपैरिजन व्हाट वी गॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जब प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव होती है तो हमें पता है कि हमारे पास एक कांस्टेंट अकर होता है। इस कांस्टेंट को हमने कहा है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। देन और इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 9 एक्सपोनेंट 9। ओके, इट इज़ नॉट इफ, इट इज़ ऑफ, राइट? हियर इज द टाइपिंग मिस्टेक, सो राइट इट एज ऑफ। अच्छा, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसको हम इस वैल्यू से भी प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज़ प्रोनाउंस्ड एज एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इट इज़ द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस के जो भी लाइक चार्जेस हैं उनके दरमियान की जो फ्री स्पेस है उसकी परमिटिविटी क्या है। तो जब हम k की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे, जैसे मैं आपको प्रीवियस इक्वेशन दिखाऊं, इस तरह से k की जगह पे इसकी वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की, तो अब मेरे पास इक्वेशन को जिस तरह से मॉडिफाई होगी। ठीक, सो दिस इज़ योर कूलम्स लॉ। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ तक बनेगी, जो इसका फर्स्ट रिजल्ट है वो ये है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी फार्मूला को हम न्यूमेरिकल में भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, और एक फॉर्मेशन इसकी ये भी है। नाउ वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है स्टूडेंट्स के चार्ज को मूव करवाने के लिए जो फोर्स हमें रिक्वायर्ड है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मूविंग ऑफ चार्ज की जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है उसको हम सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं विद द कैपिटल ई, और इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है कि किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कह रहे हैं बिकॉज इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन। हियर इज़ द फार्मूला। अच्छा, अब यहाँ पे जो फोर्स है वो बेसिकली हम उसी फोर्स को यूज़ कर रहे हैं जो अभी हमने कूलम्स लॉ में डिराइव करी है। ठीक है, तो मैं इस फोर्स की जगह पर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूँ और फिर जब मैं इनको सॉल्व करूँगी, जैसे ये डिवाइड है, डिवाइड अपॉन क्यू, मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगी तो ये मल्टीप्लाई पे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चार्जेस कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो रिमेनिंग चार्जेस है वो क्यू। ठीक, सो दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है,
इट्स यूनिट इज न्यूटन्स पर कूलम, ये इसका यूनिट हो गया। Okay, now we have to understand what is electric potential energy. Electric potential energy सिंपली ये है कि हमारे पास जो चार्जेस मौजूद होते हैं, नेगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस, तो जब नेगेटिव चार्जेस मूव करते हैं टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्जेस, तो उनको कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और नॉर्मली ये कंसिडर किया जाता है कि नेगेटिव चार्जेस जो है वो कंटेन करते हैं हाई पोटेंशियल एनर्जी और पॉजिटिव चार्जेस लो पोटेंशियल एनर्जी कंटेन करते हैं। तो जो मूविंग ऑफ चार्जेस है वो हाई टू लो होती है, और इस एनर्जी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और जो इनका डिफरेंस होता है, जो इनका वर्क डन होता है, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। वर्क डन फॉर चार्ज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जो भी चार्जेस की मूवमेंट है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर के, उन चार्जेस की मूवमेंट पे जो वर्किंग परफॉर्म हुई है, उस वर्किंग को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये देखिएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, चार्ज को मूव करवाने के लिए जो भी वर्क डन हुआ। अच्छा, वी नो दैट कि वर्क डन का यूनिट होता है जूल्स, और चार्ज का यूनिट अभी हमने स्टडी किया, दैट इज़ कूलम्स। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और जिसको हम वोल्ट्स भी वोल्टेज भी कहते हैं, वोल्ट्स इसका यूनिट कहलाता है। ठीक है, ये जूल्स पर कूलम्स बेसिकली कॉम्बिनेशन बनता है, इसको हम कहते हैं वोल्ट्स। और वोल्ट्स जो है वो साइंटिस्ट नेम के बेसिस पे रखा गया, दैट इज़ एलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम के बेसिस पे वोल्ट रखा गया। ये देखिएगा, दिस इज योर डेफिनेशन। द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेवल बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इट इज़ द वर्क डन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जो भी उनके दरमियान का जो लेवल है, उस लेवल का जो डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हियर इज़ योर यूनिट एंड नाउ वोल्ट। अच्छा, अब वोल्ट यूनिट है, तो यूनिट को हम उसी फार्मूला के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। जस्ट लाइक 1 जूल ऑफ वर्क डन की बात हो गई। टू मूव द चार्ज, अब चार्ज का क्या है, कूलम होता है, तो टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स विल बी 1 वोल्ट। हम इसको यूनिट चार्ज से डिफाइन करते हैं, मतलब सबकी वन टाइम की क्वांटिटी को लेकर यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। Now what is electric current? Basically electric current is simply the flow of electric charges in the particular time। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जितना भी चार्ज हमारे पास फ्लो हुआ है, उस चीज़ को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और सिंपल लैंग्वेज में करंट कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ द फार्मूला, चार्ज अपॉन टाइम। अच्छा, करंट का जो ऐसा यूनिट है उसको एम्पियर्स कहते हैं। ठीक है, उसको कैपिटल ए से प्रेजेंट करते हैं, और एम्पियर्स को भी हम इसी फार्मूला की बेसिस पे डिफाइन कर देंगे कि इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज passes with the particular time, then the current will be of 1 ampere. It is 1. Okay, now here is some new concept. What is resistance? अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो रिपेल करने की वजह से होता ये है कि उनमें एक अपोजिंग फोर्स क्रिएट होती है। ठीक है, और वो अपोजिंग फोर्स बेसिकली फ्लो ऑफ करंट को रिस्ट्रिक्ट कर रही होती है, रोक रही होती है, इसलिए इसको हम अपोजिंग फोर्स कह रहे हैं। तो ये जो फोर्स है ना, बेसिकली दिस इज़ नोन एज योर रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट हर कंडक्टर में प्रेजेंट होती है, जस्ट लाइक इट इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी। ठीक है, ये हर कंडक्टर में अकर होती है, मींस कि हर कंडक्टर में कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो पेयर अप नहीं हो पाते, जो कि अट्रैक्ट नहीं करवा पाते, तो वो फिर क्या होता है, वो फिर आपस में अपनी एक फोर्स ऑफ रिपल्जन क्रिएट करते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि फ्लो ऑफ करंट का जो प्रोसेस होता है आपके पास, वो स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, अब क्या फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, मतलब जिस तरह से कंडक्टर की नेचर चेंज होती है, डिफरेंट टाइप्स के कंडक्टर्स हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉपर एलिमेंट ही कंडक्टर है, और भी बहुत सारे मेटल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं। तो वो उनकी नेचर पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट यूज़ हुआ है कंडक्टर की मेकिंग में, उसकी लेंथ कितनी है, उसका एरिया कितना है, और कंडक्टर जिस टेम्परेचर पे प्रेजेंट है वो भी एक फैक्टर है रेजिस्टेंस के लिए। ठीक,
अच्छा, रेजिस्टेंस को हम अगर सर्किट में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम उसको इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये रेजिस्टेंस की प्रेजेंस होती है। मतलब अभी ये जो सर्किट है मेरे पास, उसमें जो पावर सप्लाई है, उस पावर सप्लाई से में 3 रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट हैं, ये शो कर रहे हैं। ठीक, अभी जब नेक्स्ट वीक में जब हम न्यूमेरिकल्स पे स्विच होंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट और इजीली समझ में आ जाएगा। रेजिस्टेंस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट, राइट। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज़ ओम, इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द साइंटिस्ट नेम। अच्छा, ओम का जो सिंबल है वो इस तरह से, इसको हम ओमेगा रीड करते हैं और सिंपली ओम्स भी रीड कर सकते हैं। ओम्स की डेफिनेशन को इसी फार्मूला पे डिफाइन किया है। 1 ampere of current passes through a conductor. Potential difference across its ends is 1 volt and the resistance of that conductor is 1 ohm. ठीक है। ओके, नाउ वी हैव ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का जो रिलेशन है बेसिकली वो रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट पे ही डिपेंडेंट है। इसी लॉ के थ्रू रेजिस्टेंस का फार्मूला डिफाइन होता है। ठीक है। अच्छा, देखते हैं कि आप क्या कह रहे हैं इस फॉर्म में। द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर आर केप्ट कांस्टेंट। कह रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर में से जितना भी करंट पास होता है वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड होता है। मीन्स कि जिस तरह से करंट आपका इंक्रीज़ होगा आपके पोटेंशियल डिफरेंस में भी राइज आएगा, या अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ होगा तो करंट में भी राइज आएगा। अच्छा, अब अभी यहाँ पे उन्होंने टेम्परेचर और दूसरी कंडीशंस को, नेचुरल कंडीशंस को कांस्टेंट स्टेट में प्लेस किया है। मतलब अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि कंडक्टर की जो नेचर है वो चेंज हो रही है या टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक। अच्छा, इसी सेंटेंस को अगर हम मैथमेटिकली प्रेजेंट करना चाहें सो इट विल बी V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I द। अच्छा, अब जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव होगा तो R यहाँ पे एज अ कांस्टेंट अगर होगा, R इज़ अ कांस्टेंट नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो इसको बेसिकली एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है और ये कंडक्टर वाइज चेंज होती जाती है। ठीक है, जिस तरह से हम डिफरेंट कंडक्टर्स यूज़ करेंगे उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती रहेगी। Okay, so this is all about today's lecture. In the next week we will complete this chapter, remaining topics, numericals and objectives, right? So students, today's lecture was not too much lengthy, right? So kindly understand it and note down these questions in your register. Make neat and clean figures as well, right? And do study these topics from your book. Okay students, thank you so much. Allah Hafiz.